Hello, my dear student of Standard 7th, and as you can see on your screen that today we are going to do the last chapter from semester 1 book, and that is the administration of the state. So basically I am going to cover this chapter into the small parts. So without any delay, let's begin. So here is your first page. So let us read. We have already learnt that the administration of our country function at three levels: local level, state level, and central level. In the previous chapter, we have learnt about the working of local self-government institution. In this chapter, we shall learn about how the administration function at the state level in a democracy, what are the functions of the state government, and what are the roles of the minister and the member of legislative assembly. How do people put forward their question and ideas to the government, and how do they ask for the fulfillment of their demands? To understand more about this, we shall take an example from a medical field. So friends, what they want to say is that our country, in our country, there are three types of government is working. Let me give a straightforward example so that you can get the clarity. Friends, in every 5 years, I used to vote three times. One for AMC, municipal corporation election, that is held for district level. Then I am voting for the state legislative assembly for Gujarat government. And third, Lok Sabha election. So I have to vote three times. Okay, so this way government is working at the three level. And uh, now in the previous chapter we are already seen that the local self government, how it's work, how it function. But in this chapter we are going to see about the state government. Okay, स्टेट गवर्नमेंट में सीएम होते हैं, गवर्नर होते हैं. ओके, एंड ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सनस होते हैं, ये सारे के सारे कैसे हमारे डिमांड्स पूरे करते हैं. एक्चुअली हम इनको मिनिस्टर बनाते ही क्यों हैं? वेल, द रीज़न इज़ क्वाइट क्लियर. द रीज़न इज़ टू फुलफिल अवर डिमांड. से फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे घर के आसपास बहुत गंदगी रहती है, क्लीनलीनेस के इशू रहते हैं. सो मैं उसी पर्सन को वोट दूंगा जो मेरे घर के आसपास में सफाई मेंटेन करवा दे. ऑफकोर्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है, बट सम हाउ जब भी म्यूनसिपल का इलेक्शन होंगे तो मैं उसी पर्सन पे ट्रस्ट करूँगा जो मुझे प्रॉमिस करेगा कि मैं अभी ये मैटर सॉर्ट आउट करवा दूँगा. ओके, सो यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, वी हैव टू गो थ्रू एन एग्जाम्पल. सो लेट्स सी. वेल, इट इज़ समथिंग लाइक अ कॉमिक बुक. ओके, सो लेट्स बिगिन. मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे. सो पिक्चर नंबर 1, देर आर टू गाइज, one in yellow shirt and another in red shirt like me. Okay, according to the news on the TV, 10 people have died in Surat due to cholera. Okay, so सूरत में 10 लोगों की मौत हो गई because of the cholera spread. So ये येलो शर्ट वाला क्या सोच रहा है? कैन पीपल रियली डाई ड्यू टू एन एपिडेमिक? रेड शर्ट वाला क्या सोच रहा है? हाउ वुड आई नो? द ओनली थिंग दैट आई केयर अबाउट इज दैट आई एम नॉट अफेक्टेड बाय दिस. सो यहाँ पे दे वॉन्ट टू डिस्कस कि सूरत में 10 लोगों की डेथ होती है बिकॉज ऑफ द कोलेरा. सो इट्स अ एपिडेमिक. एपिडेमिक यानी महामारी, जैसे अभी कोरोना वायरस है, समथिंग लाइक दैट. बट देर आर सर्टेन पीपल हु आर थिंकिंग कि अपने को जब कुछ नहीं हो रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है, समथिंग लाइक दैट. वी आर गोइंग फॉर द पिक्चर नंबर 2. I can hear procession outside. Okay, procession outside, that means there are some program, maybe religious and something like that. Now, in the third picture, we demand that the administration take immediate measure to control the epidemic. We should pay attention to maintain the cleanliness and take step to stop the epidemic from the spreading. So they are conducting the meeting, and they are that person in a red shirt, he is taking the public in confidence that we should do something to control this.
actually this disease is spread because of the uh, dirtiness spreading all around. So it is simple to make everything clear. एंड अगर आसपास में सराउंडिंग हाइजेनिक होगा तो बीमारी ज़्यादा फैलेगी नहीं. सो उन्होंने कुछ मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए कहा है. 4 नंबर की पिक्चर पे चलते हैं. मे बी इट्स बिकॉज ऑफ पीपल आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट कोलेरा एपिडेमिक. सो सी पब्लिक के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग कवर कर रहे हैं. what I am taking from all this, I think the people who are addressing the procession are leaders. तो that red shirt guy in the third picture वो leader हो सकता है उनका. Yes, they are the leaders and I have seen them on TV. Yes, TV से बहुत सारे ऐसे लीडर्स आते हैं जहाँ पे दो पक्ष होते हैं. एक सरकार की बुराई करता है, एक सरकार के फेवर में होता है, और ये दोनों बोलते रहते हैं. ऐसा लगा है साग मार्केट हो गया है. आई थिंक हमारे लीडर्स को भी थोड़ा सोचना चाहिए. सो आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल दिस न्यूज़, सो फर्स्ट पिक्चर में एक बच्चा बोल रहा है कि कोलेरा स्प्रेड हो गया. सेकंड पिक्चर में मतलब कुछ बाहर चल रहा है. थर्ड पिक्चर में ये लोगों से मतलब क्लीनलीनेस और हाइजेनिक की बातें कर रहा है. एंड ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए. फोर्थ नंबर वाले लोग रैली प्रोसेस कर रहे हैं. फिफ्थ नंबर में बोला कि हाँ ये लीडर्स हैं एंड ऑल डेट. अब इनमें से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड डेट वी आर सपोज टू सी थिंक ऑन द बेस ऑफ द पिक्चर. तो हम लोगों ने पूरी पिक्चर डिस्कस कर ली है. नाउ वाई वॉज द प्रॉब्लम ऑफ कोलेरा सो सीरियस इन सूरत? अनहाइजेनिक. क्योंकि वहाँ पे जो म्यूनसिपालिटी होगी वो ठीक से वर्कआउट नहीं कर रही है एंड कचरा इधर का उधर ही पड़ा है एंड बिकॉज ऑफ इट कोलेरा स्प्रेड. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन सच अ केस आर मेंशन अबाउ. व्हाट आर योर व्यूज? तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मीन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तो म्यूनसिपालिटी होगी या तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा, उनको क्या स्टेप लेने चाहिए? तो इमीडिएटली वो सब कचरा साफ करवाना चाहिए और बीमारी और लोगों को मेडिकल सर्विसेज देनी चाहिए. वेल ये मेरे व्यूज़ हैं, आपके व्यूज़ भी हो सकते हैं जो आप चाहो. एंड द लास्ट क्वेश्चन, इफ सच सिचुएशन अराइज इन योर लोकेलिटी, है ना, जब तक दूसरे के वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इट्स ओके, बट जब प्रॉब्लम हमारे सिर पे आती है ना देन इट्स अ इशू. ओके, तभी ज़्यादा सीरियस एंड क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है. आगे, you have read the incident of the cholera epidemic and you might have observed the leader of your area presenting a health issue of the local health officer, the district collector of the other officer. But have you seen the member of legislative assembly MLA of your area? You have heard about the legislative assembly. तो यहाँ पे हमने एक पिक्चर में देखा कि एक लीडर जो है वो हेल्थ इशूज़ के बारे में बात कर रहा है एंड ये कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिसर्स को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा है कि देखो ये सब हो रहा है. कलेक्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द आई कैन से डिस्ट्रिक्ट. एंड आप लोगों ने एमएलए नाम भी सुना होगा. अभी एमएलए क्या होता है, लेट्स सी. सो अभी हम नीचे आ जाते हैं एक्टिविटी के ऊपर वाले पैराग्राफ में एंड मैं अपने इमेज को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं. डन. द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर आर नोन एज एमएलए. लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स जो चुने जाते हैं उसको हम एमएलए कहते हैं. लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए. शॉर्ट आपको इतना याद रखना है. ओके, सो सेकेंड लाइन में आते हैं. एमएलएस आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. से फॉर एग्जाम्पल इन जब भी स्टेट के इलेक्शन होते हैं इन गुजरात देर आर टोटल 182 सीट्स और जो 182 लोग चुन के जो पार्लियामेंट जो जाते हैं विधानसभा में दे ऑल आर द एमएलए. राजस्थान में 200 है. ओके, दिल्ली में 70 है. जस्ट गिविंग यू एन आइडिया. सो एंड जिस पार्टी के मेंबर ज़्यादा होते हैं उनकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है. डिपेंड करता है कि 50% से ज़्यादा हो. अदरवाइज़ बहुत सारी अलग अलग पार्टियाँ मिलके भी गवर्नमेंट चला सकती हैं. एग्जैक्टली हैपनिंग इन द महाराष्ट्र. ओके, किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है बट 3 पार्टी आपस में मिलके गवर्नमेंट चला रही है. एनी हाउ, तो ये लोग डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं. आफ्टर बीइंग इलेक्टेड फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंसी they become the MLA and form the government. Thus we can conclude that MLA are the representative of the people. So वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं.
सो एक्टिविटी दी हुई है तो थोड़ा इसको डिस्कस करना तो बनता ही है. फाइंड आउट द MLA ऑफ योर एरिया एंड फाइंड आउट हिज और हर कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस. तो आप अपने एरिया के MLA की डिटेल निकाल सकते हो जिसे आपको नेट पे सर्च करना है. ओके, नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ योर एरिया एंड राइट अ लेटर टू MLA इन्फॉर्मिंग हिम और हर. जेन्युइनली अगर प्रॉब्लम हो तो ही लेटर लिखना, वरना उनके पास ही बहुत सारे काम होते हैं तो उनको अननेसेसरीली परेशान नहीं करना है. पर हाँ, प्रॉब्लम सीरियस है देन यू कैन राइट द लेटर एंड यू कैन हैव अ कॉन्टैक्ट, है ना. उसको भी आपको उसको भी कुछ वर्कलोड फील होगा एंड वो भी काम करेगा. क्यों? उसको भी अगली बार इलेक्शन में जीतना है कि नहीं जीतना है. ओके, नाउ यू कैन सी बॉटम पार्ट ऑफ द पिक्चर, नीचे समवेयर ओवर हियर 9.1 लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात. तो ये गुजरात का लेजिस्लेटिव असेंबली है और ये कुछ ऐसा दिखता है. ओके, ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया हैव लेजिस्लेटिव असेंबली. ईच स्टेट हैज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज. तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. मैंने आपको जस्ट पहले बताया था 182 सीट्स हैं. ओके, फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल. तो लोगों द्वारा एक मेंबर चुना जाता है. पीपल, द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली में डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स. हर 5 साल में ये इलेक्शन होते हैं और पॉपुलेशन कितनी है उसके ऊपर से उसके कंस्टिट्यूएंसीज के नंबर डिसाइड होते हैं. से फॉर एग्जांपल दिल्ली में 70 हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ गुजरात में 182 है, जबकि राजस्थान में 200 है. तो सब स्टेट्स के नंबर्स डिफर करते हैं, डिपेंड करता है पॉपुलेशन कितनी है. तो गोवा के तो और भी कम होनी चाहिए. एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं. कैंडिडेट कैन आइदर रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पार्टी और स्टैंड फॉर इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. अगर उसको कोई फेमस पार्टी से उसको अगर तरफ से लड़ने के लिए मौका मिलता है, ठीक है. अदरवाइज ही कैन स्टैंड इन एज ए इंडिविजुअल ऑल्सो. और अकेला इंसान भी इलेक्शन लड़ सकता है. बस कुछ क्वालिफिकेशन है जो आपको फुलफिल करनी पड़ती है. समथिंग लाइक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. एक एज का क्राइटेरिया होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे. सारी चीज़ें तो अभी डिस्कस नहीं की जा सकती. एनी हाउ, 10 MLA कैन बी बिलोंग टू द डिफरेंट पार्टीज. लास्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं इस स्लाइड की. द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात हैज़ 182 सीट्स एंड इज सिचुएटेड इन गांधीनगर विच इज़ द कैपिटल. सो लेजिस्लेटिव असेंबली इज सिचुएटेड इन गांधीनगर एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू 182 सीट्स आर देयर. एंड सरदार Statue of Unity, that Sardar Patel statue height is also 182. Now you got why 182? Because of this connection. The Legislative Assembly meets in the Vitthal Bhai Patel Vidhan Sabha Grah. So ये उसका बेसिकली एक नाम है. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे भी एक एक्टिविटी दी हुई है. लेट अस लर्न अबाउट द मिनिस्टर एंड द CM इज सिलेक्टेड अमंग द MLA. The party which has the largest number of MLA and gain the majority with the support of the other parties or an independent candidates from the government. And the governor appoint the leader of the majority party as the CM and he or she is the invited to form the council of minister. The party that forms the government is known as the ruling party while the other party forms the opposition. चलो हम लोग एक केस स्टडी लेते हैं. इन 2018 there was an election held in Gujarat and you know it very well that there are total 182 seats. Out of 182 seats, 99 seats won by the BJP and somewhere around 80 seats were won by the Congress. So remember friends, आपको एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है. जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स होती हैं उसको आप 2 से डिवाइड कर दो. 182 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 91 मिलता है. डेट मीन्स एक प्लस करने का हमेशा. 92 सीट जिसके पास होगी ना वो गुजरात में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर देगा, वो गुजरात में अपनी गवर्नमेंट बना सकता है. राइट नाउ इन 2018 नॉट राइट नाउ 90 मोर देन 92 सीट्स आर हेल्ड बाय द BJP. तो BJP के पास 99 सीट्स, तो BJP की गवर्नमेंट वर्क कर रही है. ओके, सेम थिंग हैपन इन द दिल्ली ऑल्सो, है ना. दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 60 प्लस, आई एम नॉट रिकॉलिंग द एग्जैक्ट नंबर बट मे बी 61 62 बट मोर देन 60 प्लस ही था. तो इजीली से अगर उसको 60 सीट्स मिलती है आउट ऑफ 70 देन वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा. एंड
अब उसको अपॉइंट कौन करेगा? वेल, स्टेट का जो रियल हेड होता है ना वो गवर्नर होता है, एंड गवर्नर उनको अपॉइंट करते हैं, प्लेस दिलवाते हैं और सीएम के लिए फिर अपना वर्क शुरू कर सकते हैं। अब एज ए सीएम उनको अलग अलग मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना होता है, ओके। तो उसको हम लोग कहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये सीएम की अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस होती है, किसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है, किसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाना है, ओके, किसको ट्रांसपोर्टेशन, किसको कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाना है, ये सब वो लोग ही डिसाइड करेंगे। चलो, और जो पार्टी हार जाती है, से फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी इन गुजरात, तो उसको हम लोग अपोजिशन पार्टी कहेंगे, जिनका काम सिर्फ एक ही होता है, गवर्नमेंट के स्टेप्स की क्रिटिसाइज करना एंड उनकी बुराई करना। डिस्कस दिस वर्ड्स इन द क्लास: मेजोरिटी पार्टी, रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी एंड कंस्टिट्यूएंसीज। सी, मेजोरिटी वो होती है जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेके आती है, 50% से ज़्यादा हो तो भी मेजोरिटी होती है। रूलिंग पार्टी, जो पार्टी अभी पावर में है और जो पार्टी गवर्नमेंट रन कर रही है, डेट इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। अपोजिशन पार्टी, जो पार्टी हार चुकी है। एंड कंस्टिट्यूएंसीज मीन्स अलग अलग सीट्स होती हैं जो स्टेट में जो डिवाइडेड होती है फॉर द इलेक्शन पर्पज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। समटाइम्स द रूलिंग पार्टी इज नॉट फॉर्म्ड नॉट बाय एनी वन अलोन बट with the support of the other party or an or independent candidate. What is the type of the government known? तो just now I had given you the example of the महाराष्ट्र. So महाराष्ट्र में एक पार्टी रूल नहीं कर रही है, 3 पार्टी आपस में मिलके रूल कर रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोएलिशन गवर्नमेंट। जो यहाँ पे तो नहीं लिखा है बट मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, एंड इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे गठबंधन की सरकार, ओके। जो जिसके बेनिफिट्स हैं पर डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है, ओके। डिपेंड करता है कि वो मिनिस्टर कैसे सब कुछ टैटल करे। सो अगेन सम वर्क फॉर यू। व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंस्टिट्यूएंसीज? गुड, आपको नेट पे सर्च करना पड़ेगा। टू विच पार्टी डज द एमएलए ऑफ योर एरिया बिलोंग? इट माइट बी पॉसिबल कि गुजरात में से फॉर एग्जांपल कि बीजेपी का रूल है, लेकिन हमारे एरिया से कांग्रेस का एमएलए चुना हुआ, है ना, डिपेंड करता है। नाउ प्रेजेंटली विच इज़ द रूलिंग पार्टी ऑफ इन द स्टेट? सो ये तो बहुत ही इजी आंसर है, बीजेपी। हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट? वेल, डिपेंड करता है नंबर्स कितने हैं। मेंशन द वर्क डन बाय द एमएलए ऑफ योर एरिया विद द ग्रांट सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट। वेल, वो तो आप लोग ही बता सकते हो। एनी हाउ, आफ्टर इलेक्शन the governor appoints CM and the council of ministers who are collectively responsible for the administration of the state and the functioning of the various ministries. तो ये जो गवर्नर होते हैं, ये जो स्टेट के रियल हेड होते हैं, ये सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कलेक्टिवली इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। अपॉइंटमेंट करते हैं मतलब एक समारोह होता है जहाँ पे प्लेस लिया जाता है, जैसे हम लोग स्विच में बोलते हैं ना, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई, डेट यू ऑल नो। सो ऐसे ये लोग प्लेस लेते हैं। ईच मिनिस्ट्री इज हाउस इन अ डिफरेंट ऑफिस प्रीमाइसिस, तो सबके अपने अपने अलग अलग ऑफिस होते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द प्लेस वेयर ऑल द एमएलए बिलोंग टू द बोथ रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन पार्टी असेंबल फॉर द डिस्कशन। मेनी एमएलएस हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एमएलए एंड एज ए मिनिस्टर। से फॉर एग्जाम्पल अभी 99 कैंडिडेट्स गुजरात गवर्नमेंट के हैं, उसमें से विजय भाई रूपानी जो है वो सीएम है। तो विजय भाई रूपानी की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक तो वो मिनिस्टर भी है, दूसरा उनको अपनी कंस्टिट्यूएंसीज की प्रॉब्लम्स भी देखनी है। सेम थिंग हैपन विद अरविंद केजरीवाल ऑल्सो, है ना, वो अपना पूरा स्टेट तो संभालते ही हैं प्लस मिनिस्ट्री भी देखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उनको अलग अलग डिपार्टमेंट देखने पड़ते हैं। सो गेट रेडी फॉर द मल्टीटास्किंग। एनी हाउ, and the final paragraph of the day, that is governor, we are going to discuss in our next session. The other organ of the state is the executive. Executive means जो लॉस बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना, which comprises the governor, chief minister and the council of minister. The administrative officer who work under the guidance and the control of the minister are also the part of the executive body. तो ये सब बेसिकली एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट होते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कॉल्ड द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको हम लोग गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव भी कहेंगे। वाइल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आर नोन एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स, ओके।
आई होप आपको आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे एंड वेट फॉर द सेकेंड सेशन, जहाँ पे हम लोग गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नर क्या होता है, गवर्नर क्यों स्टेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है. वी आर गोइंग टू डिस्कस कि उसके पास क्या क्या पावर्स होते हैं, एंड ऑफकोर्स द CM ऑल्सो. सो बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर.